बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम तनवीर अकरम एंड यू आर वाचिंग तनवीर अकरम एकेडमी। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे बायोग्राफी ऑफ एस्किलस, और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा इसके नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और वो नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे। वहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे द बायोग्राफी ऑफ द एस्किलस। इनके एस्किलस की लाइफ एंड वर्क को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर इफ़ यू टॉक अबाउट वेयर ही वॉज बॉर्न इन 524 BC or 525 BC. There is a dispute of the year, so we can estimate that this is round about 524 BC or 525 BC. And where he was born in Greece, and the name of the city was Eleusis. Eleusis. He was devoted for the worship of Demeter. Who is Demeter? Demeter is actually the name of the goddess. Goddess of earth and harvest. Demeter is the name of the goddess of earth and harvest. Number 3, when he was child, he was sent to a countryside. Countryside means to say dehati ilaka. Why he was sent? In order to observe the ripening of grapes. कि उसको भेजा गया था कि तुम जाओ और जाकर जो अंगूर हैं उनका पकना उसको ऑब्जर्व करो। And when he went over there, he fell asleep because of the smell of the ripening grapes. के ग्रेप्स के पकने की जो खुशबू थी उससे वो he went into sleep, वो डोज करने लग गया, स्लीप में चला गया। And when he went into sleep, he had a dream. उसने ड्रीम में एक गॉड को देखा जिसका नाम था Dionysus, and he is a god of wine. He is called god of wine or ivy or grapes. Ivy is a kind of also plant, एक तरह की बेल का नाम है। Dionysus is the name of God, and he met him in his sleep. और वो उसको स्लीप में जब मिला तो he inspired him to write a tragedy. वो उसको ख्वाब में मिला और उसने उसको ट्रेजेडी लिखने को कहा, और नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड राइटिंग ट्रेजेडी। and it was
a successful tragedy. Successful tragedy writing. It was a successful tragedy, whatever he wrote. Okay, now let's talk about his family. He belonged to an aristocratic family. Aristocratic family. This is the point number 4. Aristocratic family. Aristocratic मतलब शाहाना किस्म की, बहुत अमीर किस्म की ये फैमिली से बिलोंग करता था. We talk about his father. His father's name was Napoleon. And if we talk about his brother was Sigerius. Now let's talk about the education of Aeschylus. Education of Aeschylus includes the writing of Homer. ये होमर की राइटिंग की इसने स्टडी की थी. Who is Homer? Homer is the one of the most famous and one of the first writers. के फेमस भी, one of the most famous और पहले जो राइटर्स हैं उनमें से एक है. इसकी राइटिंग जो थी उसकी इसने एजुकेशन हासिल की हुई थी. उसके बाद अगर हम बात करें तो होमर जो है Homer was the most inspiring figure for him. Most inspiring figure for him. Him mean to say Aeschylus. Aeschylus का सबसे जो इंस्पायरिंग फिगर था वो ये था. उसके बाद if you talk about he started writing at the age of teenage. When he was even teenager, he started writing. Teenager mean to say 12-13 से लेकर 19 तक की जो एज होती है उसको हम टीनेज कहते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें तो he also won many awards in tragedy writing. इसने ट्रेजेडी राइटिंग में बेशुमार अवार्ड्स विन किए हुए थे और इसकी जो ट्रेजेडी हैं वो मोस्टली एथेनियंस थी. एथेनियंस मीन टू से जो इसकी ट्रेजेडीज हैं वो एथेनियन मीन टू से वो मोस्टली एथेंस के गिर्द घूमती हैं. उसके बाद नंबर 6 पर आए तो जो एस्किलस था ही वॉज ऑल्सो अ सोल्जर और उसने बैटल ऑफ मैराथन में भी इसने हिस्सा लिया हुआ था. He was a soldier and he has also participated in the Battle of Marathon. Next, number 7. He was the most famous. His plays were most famous in Greece. Now talk about the themes of the play. इसके थीम्स की बात करें तो इसके प्लेस के जो थीम थे वो मोस्टली रिलीजियस थे एंड मॉरल. Now talking about the 9th point, his biggest
contribution was the introduction of the second actor. इसने सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस कराया था। नाउ इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और वो कंट्रीब्यूशन था कि ही इंट्रोड्यूस्ड सेकंड एक्टर। इसने सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस कराया था प्ले के अंदर। और 10th पॉइंट पर इससे पहले इसका कंट्रीब्यूशन था जो कोरस था, इसके रोल को इसने एक्सटेंड किया था, एक्सटेंडिंग द रोल ऑफ कोरस, कि इसने कोरस को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दी थी प्ले के अंदर। इससे पहले इसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। एस्किलस का क्लेम ये था, ये दावा इसका ये था कि ही हैज़ रिटन 19 प्लेस। अब उन 19 में से ओनली 7 सर्वाइव्ड हैं। ये आपका एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। नंबर 12, जिस थिएटर में एस्किलस के प्लेस परफॉर्म किए गए थे उसका नाम है थिएटर ऑफ यूनिसस। नंबर 13, रिसेंटली इसका एक प्ले 2003 में डिस्कवर हुआ था। और वो कहाँ से डिस्कवर हुआ था? एक इजिप्शियन मम्मी के पास। इजिप्शियन मम्मी थी, उसके पास एक रैपिंग में था, यानी कि किसी चीज़ में लिपटा हुआ था। और यह बिलीव किया जाता है कि ये 2000 साल पुराना है, या 2000 साल तक ये छुपा रहा था। बाद में इसको डिस्कवर किया गया था और उसका नाम था एक्किलीज, जो उसके प्ले का नाम था। एंड इट वाज द पार्ट ऑफ द ट्रिलॉजी, एक ट्रिलॉजी का एक पार्ट था। नंबर 14, इफ यू टॉक अबाउट हिज डेथ, ही वाज डाइड इन 456 BC। ये उसकी डेथ है। Thank you so much. If you like the video, please like and subscribe it. Thank you so much for your watching.